Hello, my little learners. Welcome to EduVibe, the vibe of smart education. और अब हम आगे चलते हैं आपकी ग्रेड 9 की बुक लेकर. This is your chapter 1 in continuation, part number 4 of chapter 1, number system. तो हमने पिछले 3 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने क्या क्या सीखा. फर्स्ट थिंग, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. सेकेंड थिंग, इरैशनल नंबर्स कैसे होते हैं. And then we have also learned about terminating and non-terminating recurring decimal number system. अगर decimals में number होते हैं तो उनको किस तरह से classify किया जाता है कि ऐसा decimal है, अगर वो terminating है या वो recurring है, then it is a rational number, and if it is non-terminating, non-recurring, आप उसको क्या बोलेंगे? Yes, absolutely correct. वो आपका irrational number हो जाएगा. और irrational numbers को हम कभी भी P upon Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो कम स्टिल इफ यू हैव सम डाउट्स, आप उन वीडियोस को वापस से देख सकते हैं. यू हैव लिंक इन द बायो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब EduVibe. मूविंग अहेड विद द जर्नी, वी हैव 1.4 और 1.4 में हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स. जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो रियल नंबर्स मीन्स द सेट ऑफ all rationals and irrationals, and we talk about doing different mathematical operations on real numbers. अब ये mathematical operations कौन कौन से हो सकते हैं? They can be addition, subtraction, multiplication and division. You have already started in earlier classes कि हम जब rational number की बात करते हैं तो उसमें हम different laws apply कर सकते हैं. कौन कौन से laws? Commutative property, associative, distributive law, also these law of addition and multiplication. And along with that, हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम add करते हैं, subtract करते हैं, multiply करते हैं या divide करते हैं, division with not with 0 but with any other rational number, then we get a rational number. That means हमेशा rational numbers closed होते हैं with respect to addition, subtraction, multiplication and division. That इसका क्या meaning हुआ? It turns out that irrational numbers also satisfy commutative, associative and distributive laws of addition and multiplication. However, the sum, difference, quotients and the product of irrational numbers are not always irrational. That means अगर आपके पास दो irrational numbers हैं तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आप दो irrational numbers को add करेंगे तो हमेशा आपको irrational number मिलेगा. वो rational भी हो सकता है, वो irrational भी हो सकता है. Similarly, अगर दो irrational numbers का आप difference निकाल रहे हैं तो आपको result rational भी मिल सकता है, irrational भी. And the same thing applies with multiplication and division also. और अब मैं आपको एक डिफरेंस शो करूंगी जहां आप एक इरैशनल नंबर में से दूसरे इरैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट अ इरैशनल नंबर. लेट्स से 5 प्लस 2√2 और इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया 5 माइनस 2√2 and when you open the bracket यहाँ आएगा 5 plus 2√2, right? And this will be minus 5 and ये minus minus plus बनेगा 2√2. Now you observe ये दोनों numbers cancel हो गए और cancel होने के पास आपके पास बचा 2√2 plus 2√2, that is 4√2. And ये कौन सा number है? This is irrational number, right? अब multiplication का आपको example देते हैं. So when you talk of finding the product of two irrational numbers, suppose मैंने √3 और √5 को multiply किया. What do you get? Yes, it is √15. 5 3 times is 15 और आपको अंडर रूट मिला. तो ये कैसा नंबर है? बहुत जल्दी बताएंगे. This is irrational number. And if I multiply √2 with √2, you get √4 और √4 क्या होता है? √4 is equal to 2 and 2 is a rational number. So one time we get irrational
and second time we get a rational number. अब हम आते हैं division में. You want to find the quotient. So suppose I write down root 8 divided by root 4. तो आपको रिजल्ट में मिलेगा √2. और √2 क्या होता है? इट इज इरेशनल. एंड अगर मैंने √8 को √2 से डिवाइड किया, यू गेट √4 विच इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज अ रैशनल नंबर. तो यहाँ हमने सारे ऑपरेशंस को चेक किया और हमें ये पता चला कि अगर दो इरेशनल नंबर्स दिए हुए हैं आपको and you are going to perform any mathematical operation on it, you can either get a rational number or you can get the irrational number. Now, let us look what happens when we add and multiply a rational number with irrational number. एक rational number है और एक irrational number है और हम उन दोनों को add कर रहे हैं या हम उन दोनों को multiply कर रहे हैं. तो क्या होगा? सपोज आई हैव √3. अब √3 आपका इरेशनल नंबर है एंड व्हेन आई टॉक अबाउट 2 प्लस √3, तो 2 प्लस √3 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. तो इरेशनल में अगर एक रैशनल ऐड हो जाता है तो वो आपका इरेशनल नंबर बन जाता है. एंड व्हेन यू राइट 2√3, तो 2√3 भी आपका इरेशनल नंबर हो जाता है बिकॉज √3 आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है and it is the non-recurring decimal expansion. So every time you have to remember कि अगर आपका 2 plus √3 है या कोई भी एक rational और irrational को हम add कर रहे हैं, it always forms a irrational number. And similarly एक rational और irrational को हम multiply करते हैं, then also you get a irrational number. So these are irrational numbers. Now I'll give you one more example. This is example number 11 of your book. You have to check whether 7√5, 7 upon √5, √2 plus 21 and pi minus 2 is irrational number or rational number. तो सबसे पहले हम √5 की बात करते हैं. √5 हमें मालूम है it is 2.22236 डॉट डॉट एंड इसी तरह √2 की हमने वैल्यू लिखी, it is 1.4142 डॉट 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 and we have written the value of pi also, it is 3.1415 डॉट डॉट डॉट. अब आते हैं 7√5 पर. तो 7 को √5 से मल्टीप्लाई किया, so this is √5 and we get this value. This is irrational. Similarly अगर हम 7 upon √5 लिखते हैं तो 7 upon √5 में डिनोमिनेटर इज अ इरेशनल नंबर. सबसे पहला हम काम करेंगे डिनोमिनेटर को रैशनल बनाएंगे. उसके लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स को √5 से मल्टीप्लाई किया. अब ये √5 से मल्टीप्लाई क्यों किया? जिससे डिनोमिनेटर आपका रैशनलाइज हो जाएगा एंड दिस बिकम्स 5 एंड दिस √5 जिससे हम बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर आपका बन जाएगा √5 विच इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर, जो आपके डिनोमिनेटर को इरेशनल को रैशनल में कन्वर्ट कर रहा है. एंड फाइनली वी गेट 7√5 अपॉन 5. अब 7√5 की वैल्यू तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको 5 से डिवाइड करेंगे एंड वी गेट irrational number. Coming to the next one, √2 plus 21. √2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, it is 1.4142 डॉट डॉट एंड इसमें अगर हमने 21 ऐड किया so we get 22.4142 डॉट डॉट डॉट. और ये क्या है? Yes, it is again a irrational number. और अगला नंबर है आपके पास pi minus 2. पाई की वैल्यू में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचा 1.1415 डॉट डॉट डॉट. एंड ऑल दीज नंबर्स, ये जो हमें आंसर्स में मिले हैं, ये कैसे नंबर्स हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग. तो इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? दे आर इरेशनल नंबर्स. वेरी गुड. एंड वी हैव अ long list of these irrational numbers. Come, let's take another example. Here you have to add 2√2 plus 5√3 with √2 plus 3√3.
आपने पहले ये नंबर लिया और इसमें √2 माइनस 3√3 को ऐड किया। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये जो √2 वाले दो नंबर्स हैं हम इनको एक साथ ले आएंगे, एंड इसी तरह √3 वाले जो टू नंबर्स हैं 5√3 एंड माइनस 3√3 आप इनको एक साथ ले आएंगे। अब ये है 2√2 और खाली √2 लिखे होने का मतलब होता है 1√2। अब इन दोनों में से अगर हमने √2 को कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 2 प्लस 1 एंड वी गेट 3√2 फ्रॉम हियर। ये आपका 3√2 बना। एंड आफ्टर दिस यू हैव 5√3। ये 5√3 माइनस 3√3 अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर √3 कॉमन है, हमने √3 कॉमन को ब्रैकेट से बाहर लिखा और 5 माइनस 3 यू गेट 2, so we get 2√3. So this 3√2 plus 2√3 becomes your answer. So this is how we perform addition and अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जो है एग्जाम्पल नंबर 13 where you are going to perform multiplication of two irrational numbers. तो दो नंबर्स कौन से दिए हैं, फर्स्ट इज 6√5 and second is 2√5. एंड व्हेन यू परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन तो जो आपका रैशनल पार्ट है 6 और 2 उसको हम एक साथ ले आएंगे, वी मल्टीप्लाई 6 एंड 2 और √5 और √5 को एक साथ लिखेंगे। 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12 और √5 मल्टीप्लाई √5 का एक्चुअल मतलब होता है √5 का स्क्वायर, एंड √5 का स्क्वायर 5 हो जाता है। तो आपने ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपके √2 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वो 2 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर लिख रहे हैं तो वो 7 हो जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी जनरल थिंग जो आपको हमेशा कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखनी है। देन वी मेक इट 5 एंड दिस इज 12। 12 multiply 5 gives you 60. That's your answer. Take another example. You have to divide 8√15 by 2√3. तो पहले आपने लिखा 8√15, 8√15 को हमने ब्रेक किया, 15 को हम 5 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। सो वी हैव रिटन √5 एंड √3 का प्रोडक्ट। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 2√3 दिया है, इस 2√3 को यहाँ लिखा और इसको ब्रेक करने का पर्पस था कि ये √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 4 times is 8. You are left with 4√5. That's your answer. Now let's move ahead. Now these examples may lead you to expect the following facts. इन facts को आप ध्यान रखेंगे so that you come to the right conclusions. तो कौन कौन से वो facts हैं? The first one is the sum or difference of rational number and an irrational number is always irrational. एक रैशनल नंबर है आपके पास, एक इरैशनल नंबर है, अगर आप उसको ऐड कर रहे हैं या आप उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, एवरी टाइम यू आर गोइंग टू गेट एन इरैशनल नंबर। द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना है कि या आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं या आप कोशेंट निकाल रहे हैं एनी रैशनल नंबर विद इरैशनल नंबर, तो आपका रिजल्ट फिर हमेशा ही इरैशनल आएगा। एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरैशनल्स तो उस केस में आपका रिजल्ट रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। We now turn our attention to the operations of taking square root of real numbers. अब हम बात करते हैं real numbers के square root की। We know that if a is any natural number, तो जो square root of a अगर वो b के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? b square is equal to a. I'll give you an example. Suppose you have √9, √9 की वैल्यू 3 होती है, सपोज ये a है, √a इज इक्वल टू b, तो b स्क्वायर यहाँ पर क्या हुआ? इक्वल टू a, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9. So this is what we mean by this statement, and remember the value of b should be greater than 0. That means वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए. And the same definition
can be extended for positive real numbers also. Understood? Now we take the example. Let us assume कि a कोई value है which is greater than 0 और a हमारा कोई भी real number है. तो square root a b के equal है. That means b square a के equal हो जाएगा. अभी हमने पढ़ा था. And we come to the conclusion that ये चीज तभी possible है जब b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी. नाउ इन सेक्शन 1.2 हमने पहले पढ़ा था कि रूट n ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी शोन ऑन अ नंबर लाइन. जैसे हमने रूट 2 को नंबर लाइन पर ड्रॉ किया था, रूट 3 को भी नंबर लाइन पर ड्रॉ किया था, रूट 5 को भी ड्रॉ किया था. सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू लर्न कि आपको रूट 3.5 मार्क करना है एक नंबर लाइन में. व्हाट विल यू डू? आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की, उसकी लेंथ आपने 3.5 यूनिट्स ली और 3.5 यूनिट्स लेने को हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया. अब बी से आगे आपने लाइन को 1 यूनिट एक्सटेंड किया एंड यू हैव मार्क्ड इट एज सी. सो वी गेट ए सी एज 3.5 प्लस 1. तो 3.5 प्लस 1 क्या हो जाता है? 3.5 प्लस 1 इज 4.5. आप रफली 4.5 का हाफ करेंगे, you'll get 2.25. That means 2.25 से थोड़ा सा बड़ा कंपास, हाफ से ज्यादा, 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है. आप अपने कंपास की मेजर को एक्सटेंड करेंगे. यू आर गोइंग टू पुट द कंपास एयर एंड ऊपर और नीचे एक आर्क लगाएंगे. सेम मेजर से आर्क एक पॉइंट ए से लगेगा और दूसरा मार्क लगेगा पॉइंट सी पर कंपास रख के. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू जॉइन देम, ये आपको इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा. अब आपने क्या करना है? कंपास को पॉइंट ओ पर रखना है और ये सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. और ये सेमी सर्कल ड्रॉ होने के बाद आप पॉइंट बी पर आएंगे और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ये परपेंडिकुलर बीडी आपका रूट 3.5 रिप्रेजेंट करेगा. राइट. नाउ दिस रूट 3.5 has to be represented on this straight line. तो उसको स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपने कंपास को यहाँ रखा, पेंसिल को यहाँ रखा और उसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया एंड आपकी ये जो लेंथ होगी दैट इज बी डी, दैट विल बी इक्वल टू दिस बी डी. हम इसको बी डी डैश मार्क कर लेते हैं एंड वी से दैट ये वाली जो पूरी स्ट्रेट लाइन है, आपकी जो रियल नंबर की लाइन है, वहां पर ये BD आपका रूट 3.5 रिप्रेजेंट कर रहा है. अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू यूज द जनरल रूल और जनरल रूल में आप रूट x को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे और इसे ड्रॉ करने के लिए यू आर फर्स्ट गोइंग टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में आपने पहले यहाँ पर जो भी आपको मेजरमेंट चाहिए x, उस मेजरमेंट की यूनिट को ड्रॉ करेंगे, उसमें +1 कर देंगे. then you are going to mark the center of it और सेंटर बनाने के बाद आप एक सेमी सर्कल मार्क कर लेंगे. सेंटर कैसे बनेगा? अभी हमने पीछे सीखा था कि दोनों एजेस से, यहाँ ए और सी से, इसको हम स्पेसिफिकली ए बोलते हैं, ए और सी से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आर्क्स लगाएंगे एंड वंस यू गेट द सेंटर तो आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. राइट. और जब आपका सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद पॉइंट बी से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस सेमी सर्कल पर, ये जिस पॉइंट पर टच करेगा, दिस पॉइंट इज डी, तो इस पॉइंट से इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, ये आपका रूट एक्स रिप्रेजेंट करेगा. अब ये रूट एक्स आपका नंबर लाइन पर तो आ नहीं रहा, तो उसके लिए कंपास को आपने पॉइंट बी पर रखना है, पेंसिल को पॉइंट डी पर रखना है और पेंसिल को स्लोली मूव करके यहाँ लेकर आएंगे इस लाइन को एक्सटेंड करके जिस पॉइंट पे ये टच करेगा. वी आर गोइंग टू से दैट बी डी इज सेम एज बीई. तो बीई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी डी के इक्वल, दैट्स इक्वल टू रूट एक्स. तो इस तरह से हम नंबर लाइन पर रूट एक्स को इस पॉइंट ई से रिप्रेजेंट करते हैं. गॉट इट? Now let's move ahead and we would like to now extend the idea of square roots to cube roots, fourth roots, fifth roots. किस तरह से? सबसे पहले हम
स्क्वायर रूट निकालते थे, फिर क्यूब रूट्स निकालते थे, फिर फोर्थ रूट कैसे निकालेंगे, एंड वील गो अप टू nth रूट्स. और n क्या है? n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. सपोज हमने लिखा क्यूब रूट ऑफ 8, तो यहाँ पर 3 लिखा, दैट मीन्स थर्ड रूट हम 8 का निकालेंगे. उसे निकालने के लिए हमने 8 के पहले सारे प्राइम फैक्टर्स लिखे. अब 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स 8 क्या हो गया? 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब, राइट? तो इसी तरह हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट नंबर. हम फिफ्थ रूट निकाल रहे हैं 243 का. दैट मीन्स हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिस नंबर को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 243 मिले. एंड व्हेन यू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स यू विल कम टू नो कि 3 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं you get 243. That means fifth root of 243 will be equal to 3. So by this you come to know कि अगर किसी a नंबर का nth रूट निकालना है, that and make sure कि a जो है वो आपका greater than 0 है, that means it is a positive number, and then you will be able to first find the prime factors. prime factors निकालने के बाद हम उस नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं उसके nth रूट में. एंड दिस साइन इज यूज्ड इन रिप्रेजेंटिंग द स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट और एनी nth रूट ऑफ द गिवन नंबर. एंड इसको बोला जाता है साइन ऑफ रेडिकल या रेडिकल साइन. ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट इन डिटेल. तो हमने एक क्वेश्चन लिया. Now we'll use the identities to solve the radicals. Now we have some list of identities relating to the square root which are useful in various ways. And you are already familiar with these identities. आपने अपनी पुरानी classes में पढ़ी हैं. Suppose हम example लेते हैं x plus y multiply x minus y करना है. आपको मालूम है क्या वैल्यू मिलती है? It is x square minus y square. Similarly, suppose I am taking any two positive real numbers a and b और हमने उनके साथ इन आइडेंटिटीज को यूज करना है. तो अगर मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी. सिमिलरली अगर मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी. एंड सिमिलरली if I take square root of a plus square root of b multiply by square root of a minus square root of b, then we apply the identity square root of a multiply square root of a is a. We write a here minus square root of b multiply square root of b, तो हमें यहाँ पर b मिलेगा and we get a minus b. The next identity is a plus square root b मल्टीप्लाई a माइनस स्क्वायर रूट b. तो a मल्टीप्लाई a करेंगे दैट विल बी a स्क्वायर और प्लस माइनस इज माइनस साइन और रूट b मल्टीप्लाई रूट b हो जाएगा b. सो योर आंसर विल बी a स्क्वायर माइनस b. एंड इफ आई हैव नेक्स्ट आइडेंटिटी रूट a प्लस रूट b मल्टीप्लाई रूट c प्लस रूट b. सो व्हाट विल यू डू? पहले a को c से मल्टीप्लाई किया तो ये रूट ए मल्टीप्लाई रूट सी बना रूट ए सी. देन रूट ए को रूट डी से मल्टीप्लाई किया, यू गेट रूट ए डी. एंड देन रूट बी को पहले रूट सी से मल्टीप्लाई किया, यू गेट रूट बी सी. एंड नेक्स्ट टाइम यू मल्टीप्लाई root b with root d and you get root bd. And the next property is the sixth one, root a plus root b whole square. तो यहाँ रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए पहले हम रूट ए का स्क्वायर लिखेंगे. व्हाट इज रूट ए स्क्वायर? दैट्स ए, वी राइट ए हियर. देन बी स्क्वायर, यहाँ रूट बी का स्क्वायर है तो रूट बी का स्क्वायर बी होता है, हमने यहाँ बी लिखा. एंड आइडेंटिटी क्या बोलती है? प्लस 2 times first number multiply second number. So what is first number? Root a. What is second number? That's root b. So we write down 2 times root a multiply root b, which comes out as 2 root ab.
तो ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 6 बन गई. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिटीज. यहाँ आपने इन एग्जांपल्स को सिंप्लीफाई करना है. तो फर्स्ट वन इज you have to simplify 5 plus root 7 multiply 2 plus root 5. आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 मल्टीप्लाई 2 दैट्स 10. नेक्स्ट टाइम आपने इस फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है. सो यू गेट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 दैट्स 5 रूट 5. अब आते हैं फर्स्ट वाले ब्रैकेट की सेकेंड टर्म पर. सेकेंड टर्म है आपकी रूट 7. इस रूट 7 के साथ सेकेंड का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा. तो रूट 7 मल्टीप्लाई 2 gives you 2 root 7 and last term will be इसकी सेकेंड टर्म और इसकी सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे. रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 5 that gives you root 35. अब इन सब टर्म्स को हम देखेंगे. यहाँ पर कोई भी रूट की वैल्यू सेम नहीं है, सो वी कैन नॉट एड देम बिकॉज यहाँ रूट 5 है, यहाँ रूट 7 है, यहाँ रूट 35 है. सेम नहीं है. अगर सेम होते तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे. बट नाउ दिस विल बिकम योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. 5 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस रूट 5. सो व्हाट विल यू डू? a प्लस बी, a माइनस बी आपकी आइडेंटिटी है एंड यू गेट द आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a क्या है यहाँ पर? 5. 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज 25 and root 5 square is 5. So 25 minus 5 gives you 20. Coming at the next one, root 3 plus root 7 whole square. So it is a plus b whole square. That means first term ka square plus 2 times of first term multiply second term and plus second term का square. अब root 3 का square क्या होता है? 3. 2 times root 3 multiply root 7 gives you root 21. So 2 root 21 आएगा. और root 7 का square 7 होता है, तो हमने plus 7 लिखा. अब 7 plus 3 10 हुआ, plus 2 root 21. ये rational number, ये irrational number, ये add नहीं हो सकते. So we leave the answer here only. Coming to the next one, root 11 minus root 7, root 11 plus root 7. a माइनस बी, a प्लस बी कौन सी आइडेंटिटी हो गई? दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो व्हाट इज a? रूट 11. रूट 11 का स्क्वायर लिखा माइनस रूट 7 का स्क्वायर लिखा. वी गेट 11 माइनस 7 दैट्स इक्वल टू 4 एंड दिस इज योर आंसर. नाउ वी हैव टू रिमेंबर कि इन सबको सिंप्लीफाई करते टाइम हमेशा जो भी स्क्वायर रूट की वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर प्रॉपर निकालना है, उनका प्रोडक्ट प्रॉपर निकालना है. जब इरेशनल नंबर्स हो तो उनको सोच समझकर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. बहुत बार आपको ऐसे नंबर्स दिए होते हैं जहां डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर होता है, तो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करेंगे? सपोज वी टेक द एग्जांपल 1/√2. अब डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में है, दैट मीन्स वो इरेशनल नंबर है. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअली उन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, तो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. तो हमने 1/√2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई करके 1 मल्टीप्लाई √2 बन गया √2 और √2 मल्टीप्लाई √2 बन गया 2. दैट मीन्स अब डिनोमिनेटर आपका रैशनलाइज हो गया, रैशनल नंबर हो गया एंड दिस बिकम्स योर आंसर. सो नाउ बेसिकली if you are going to locate 1/√2 on a number line, it is halfway between 0 and √2. So this is how we are able to rationalize the denominator, and in this form it is easy to locate 1/√2 on a number line. We say it is halfway between 0 and √2 क्योंकि यहाँ लिखा है √2/2. This is half of √2. So this is the easiest way
to locate the expression on the number line. अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन लेते हैं. Here we have an example 17. You have to rationalize the denominator of 1 upon 2 plus root 3. So very important thing is हम डिनोमिनेटर देखेंगे पहले. यहाँ क्या दिया है, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है. तो डिनोमिनेटर है 2 प्लस रूट 3. बहुत सिंपल तरीका सिखाऊंगी. जो डिनोमिनेटर है उसका सिर्फ ये साइन चेंज कर देंगे. यहाँ प्लस लिखा है, इसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 2 minus root 3. Now you are going to multiply numerator and denominator with 2 minus root 3, जिससे आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा. और ये 2 माइनस रूट 3 जो होगा इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर. सो हमने लिखा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 2 माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई किया. अब 1 के साथ 2 माइनस रूट 3 जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको सेम नंबर मिलेगा. अब आते हैं डिनोमिनेटर पर. इसको यहाँ आप आइडेंटिटी से रिलेट करो. a प्लस बी a माइनस बी. क्या आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी a माइनस बी गिव्स यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो हमने 2 का स्क्वायर लिखा 4, माइनस रूट 3 का स्क्वायर लिखा, दैट इज 3. और व्हाट इज 4 माइनस 3, दैट्स 1. सो यू गेट द आंसर, दैट इज 2 माइनस रूट 3. एंड यहाँ आपका डिनोमिनेटर 1 आ गया, विच इज अ रैशनलाइज्ड नंबर. एक और एग्जांपल लेते हैं. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5. पहले आप रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालेंगे. रैशनलाइजिंग फैक्टर के लिए ध्यान रखना है ये साइन चेंज होगा. तो आपको मिलेगा रूट 3 माइनस रूट 5 से रूट 3 प्लस रूट 5. So you are multiplying both numerator and denominator by root 3 plus root 5, right? And 5 के साथ एक बार root 3 multiply होगा, second time 5 के साथ root 5 multiply हो जाएगा. Okay? And denominator को अगर आप observe करेंगे, root 3 minus root 5 multiply root 3 plus root 5. a plus b a minus b की identity लगेगी, that's a square minus b square. तो रूट 3 का स्क्वायर इज 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर इज 5. सो 3 माइनस 5 इज माइनस 2. यहाँ आपको 5 अपॉन माइनस 2, ये हमने लिखा माइनस 5 अपॉन 2, और यहाँ ब्रैकेट में आ गया रूट 3 प्लस रूट 5 एज इट इज. सो हियर यू विल फाइंड कि आपका डिनोमिनेटर 2 है एंड इट इज अ रैशनल नंबर. सो वी हैव फाइनली रैशनलाइज्ड द डिनोमिनेटर. Take another example. The question is, you have to rationalize the denominator of 1 upon 7 plus 3 root 2. तो 7 plus 3 root 2 का rationalizing factor हो जाएगा 7 minus 3 root 2. Wonderful answer. तो हमने numerator और denominator को 7 minus 3 root 2 से multiply किया. तो 1 के साथ 7 minus 3 root 2 आया, तो आपको 7 माइनस 3 रूट 2 एज इट इज मिला. यहाँ पर हमने लिया a स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर. 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49. हमने यहाँ लिखा 3 रूट 2 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 2. 3 टाइम्स 3 इज 9. रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इज 2. सो वी गेट 18. तो यहाँ 49 माइनस 18 आ गया, and you get the denominator as 31, और numerator है 7 minus 3 root 2. So this becomes your answer. So this process is called rationalizing the denominator. I believe आपको एक concept clear हो गया. अब exercise करते हैं. तो सबसे पहले हम आते हैं first question में, classify the following numbers as rational or irrational. तो first question में 2 माइनस रूट 5, यहाँ पर माइनस रूट 5 आ रहा है, तो ये नंबर आपका हो जाएगा irrational. Here, can you tell me it is a rational or irrational? Rational, very good, because यहाँ ये दोनों irrational part cancel हो गए और आपको सिर्फ 3 मिला, which is a rational number. यहाँ बताएंगे. वेरी नाइस, ये मेरे बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए. रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हुआ और हमारे पास बचा है 2 upon 7, which is a rational number. And tell me about this number.
this number has a denominator of square root 2. So it is irrational number. And 2 pi के बारे में क्या विचार है आपका? 2 pi is a irrational number because pi is always irrational. तो ये आपका irrational number हो जाएगा. Now we move ahead with question 2. We have to simplify these expressions. First part लेते हैं. 3 plus root 3 and 2 plus root 2. Let's write it here. 3 plus root 3, you have to multiply it with 2 plus root 2. तो फर्स्ट नंबर के साथ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई किया. 3 मल्टीप्लाई 2 is 6. 3 को अब रूट 2 से मल्टीप्लाई किया. वी गेट 3 रूट 2. अब ये वाली सेकंड डिजिट लेते हैं. रूट 3 को इस फर्स्ट टर्म के साथ और फिर इस सेकंड टर्म के साथ. तो ये मिला 2 रूट 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 is रूट 6. गॉट इट. हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3. सेकेंड पार्ट यहां पर करते हैं. 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस रूट 3. सो व्हाट विल यू से? a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हो रही है. दैट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यहाँ a है 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर. We get 9 minus 3 और आपका आंसर आ गया 6. Coming to the next part, यहाँ हमें दिया है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर. तो ये बना फर्स्ट नंबर का स्क्वायर. फर्स्ट नंबर है रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा प्लस 2ab. तो 2 टाइम्स ऑफ रूट 5 रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर. रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, राइट? तो हमने लिखा 5 प्लस 2 रूट 10. ये स्क्वायर रूट वाली दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी. प्लस 2, so you get 7 plus 2 root 10 and that becomes your answer. Understood? अब इस पार्ट को ट्राई करते हैं. यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, जल्दी से बताएंगे. We have a minus b and a plus b. Very nice. We are going to apply a square minus b square, right? a क्या है यहाँ पर? 5, because यहाँ रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 5 हो जाता है. So we write down रूट 5 square minus रूट 2 का square. That's equal to 5 minus 2 and we get 3 as the answer. Okay. तो ये सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं. And now we have come to next question. So now we come at question 3. Recall pi is defined as the ratio of circumference. Circumference हमारा c होता है of a circle to its diameter d. And that means वो c upon d की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है. अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि पाई हम हमेशा बोलते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर है, लेकिन ये तो c अपॉन d की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है. तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम c अपॉन d की फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट मीन्स वो रैशनल होती है. सो द क्वेश्चन इज, दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल. हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? तो इमेजिन करेंगे आपको एक सर्कल दिया हुआ है. इस सर्कल की बाउंड्री को हम c बोलते हैं एंड ये सेंटर है. अगर आपको कोई डायमीटर d दिया हुआ है, सो वी राइट कि पाई की वैल्यू हमेशा हमें c अपॉन d की फॉर्म में दी होती है. लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि पाई की वैल्यू हम हमेशा 22 अपॉन 7 की फॉर्म में लिखते हैं. तो क्या ये एग्जैक्ट 22 अपॉन 7 है? नो, दिस इज अ रॉन्ग थिंग दैट वी हैव इन आवर माइंड, बिकॉज पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 एग्जैक्ट नहीं होती. इट इज 3.1412. इस तरह से बहुत लंबी सी वैल्यू होती है जो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है. That means we will say कि ये contradictory क्यों है. We will write that the actual value of pi is always irrational. क्योंकि वो irrational क्यों है? Because it is non-terminating and non-repeating. इसको हम यहाँ लिखेंगे non-terminating and non-repeating value होती है वो. Okay.
सो दैट इज अ रीजन कि हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैथ्स में हम उसको 22/7 की फॉर्म में लिख देते हैं, so that the calculations become easy. So this is the contradiction which exists in this question. Next question आता है आपका, आपने रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया था जहां रूट 3.5 को एक नंबर लाइन पर शो किया था, तो उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। विल टेक अ पॉइंट ए और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे विच विल बी ऑफ 9.3 यूनिट्स, राइट। अब इस पॉइंट को हमने बी मार्क किया और बी से सी यहाँ पर 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब इसका मिड पॉइंट लेंगे। इसका मिड पॉइंट कैसे लेंगे? 9.3 प्लस 1 इट इज 10.3। 10 का हाफ होता है, इट इज 5। तो अराउंड 6 यूनिट्स की हमने कंपास का मेजरमेंट लिया और न्यूमरेट ऊपर और नीचे एक आर्क लगाया पॉइंट ए पर रखकर। इसी तरह पॉइंट सी पर रखकर हमने फिर दूसरा आर्क लगाया और जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो सेंटर आ जाएगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ लाइन AC, राइट। अब इस पर कंपास को रखकर पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखेंगे और हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सेमी सर्कल ए से स्टार्ट होना चाहिए और सी पर एंड हो जाना चाहिए। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं पॉइंट बी पर। पॉइंट बी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस वाले सेमी सर्कल को जाकर टच करेगा एंड वी विल नेम इट एज डी। ओके, दैट मीन्स ये जो BD लाइन मिली है वो आपको रूट 9.3 मिल गई। अब BD लाइन नहीं चाहिए, हमें वो लाइन चाहिए इस नंबर लाइन पर, स्ट्रेट रियल लाइन पर, राइट। तो हमने क्या करना है, पेंसिल से यहाँ पर ये वापस से हमने कंपास लेना है, कंपास का पॉइंट यहाँ रखना है, पेंसिल यहाँ, और यहाँ से डॉटेड लाइन एक्सटेंड करते करते चले जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू मार्क इट एज E. सो वी से दैट BD और ये जो BE लाइन है दैट्स इक्वल टू रूट 9.3। इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहले AB लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी मेजरमेंट 9.3 यूनिट्स होगी, उसको एक्सटेंड कर देंगे 1 यूनिट और उसको C पॉइंट से मार्क कर देंगे। अब AC का मिड पॉइंट लेंगे बाय ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। कंपास से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसका सेंटर पॉइंट O मार्क करेंगे। अब पॉइंट O को सेंटर मार्क करके ये सेमी सर्कल ड्रॉ होगा। ओके, अब आपका सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया और वो A पॉइंट से स्टार्ट होकर C पॉइंट तक आया, दैट मींस हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज डन। अब आते हैं पॉइंट B पर। पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो परपेंडिकुलर उस आर्क पर जहां टच कर रहा है वो पॉइंट हो जाएगा D एंड दिस BD इज योर रूट 9.3। और इस हम एक्सटेंड करेंगे कैसे, यहाँ पर हमने कंपास रखा, यहाँ पर हमने पेंसिल रखी, पेंसिल को स्लोली मूव किया और यहाँ अपनी नंबर लाइन पर आकर उसको टच किया एंड वी से BE इज इक्वल टू BD दैट्स इक्वल टू रूट 9.3। गॉट इट। अब इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे इन इंस्ट्रक्शंस को दोबारा से सुनकर एंड मूविंग फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Next question is rationalize the denominator of the following. तो first question है 1 upon root 7. रूट 7 का rationalizing factor रूट 7 होगा। That means हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट 7 से मल्टीप्लाई किया। So we multiply 1 with root 7, रूट 7 मिला, रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो रूट 7 अपॉन 7 इज योर आंसर। कम एट द नेक्स्ट वन, इट इज सेकेंड पार्ट 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6। rationalizing factor, very good, that's root 7 plus root 6। तो ऊपर नीचे रूट 7 प्लस रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 1 के साथ रूट 7 प्लस रूट 6 मल्टीप्लाई किया तो वो एज इट इज रह जाएगा, राइट।
और डिनोमिनेटर में हमने कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी. Yes, that's a square minus b square. और 7 minus 6 1 होता है. So your answer becomes root 7 minus root 6. Understood? अब आ जाओ थर्ड पार्ट में. थर्ड पार्ट इज 1 upon root 5 plus root 2. Yes, tell me, what is the rationalizing factor? It is root 5 minus root 2. मेरे सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं. गुड गोइंग. एंड हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रूट 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो 1 मल्टीप्लाई रूट 5 माइनस रूट 2, वी गेट रूट 5 माइनस रूट 2. और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, दैट्स a स्क्वायर. यहाँ रूट 5 का स्क्वायर 5 हुआ माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2. सो वी गेट रूट 5 minus root 2 upon 3. That's the answer. Come at fourth part. Fourth part में आपको दिया है 1 upon root 7 minus 2. और rationalizing factor से multiply करेंगे. root 7 plus 2 upon root 7 plus 2. न्यूमरेटर बन गया root 7 plus 2 और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी. रूट 7 का स्क्वायर यहाँ पर 7 आया और 2 का स्क्वायर 4. सो वी गेट रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3. गॉट इट? तो ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ. अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस बाद में करेंगे. बट नाउ वी एंड दिस सेशन and stay tuned. Soon we'll be meeting with the next video. Goodbye.